So yesterday we have learned about the V model. So everything is clear. I think I will just repeat whatever we have covered till now in V model. Okay. So see, in V model, verification and validation is there. So verification and validation, we have development team and testing team. So this work will be done parallelly when we start with the project. So when information gathering and analysis will be done, means it will done by the development team. At the same time, the testing team will do the assessment of development phase and create a test plan for the same. So test plan is nothing but how we are going to start, when we are going to start the testing, when we are going to end the testing, what is our plan, who will work on which testing activities will be given to that manual testers, application testers. So this will be plan will be rolled at the same manner when development team is working on information gathering and analysis. When after this page is covered or after this part is covered, we are going to see development side will work on design and coding. So that will done in one phase. So in the same manner, the testing team will work on design phase testing. That will the which requirement will be gathered first, means which one will be implemented first, and depends on that we have to work on its testing part. So how we will test the application, for that we will basically do writing test cases. So basic part is like when we are going to uh, work on testing anything, so basic part is like testing activities, like we have to write a test cases. Okay, so first thing is like we will have we have to write the test cases, and after that we have to execute the test cases, right? So this will be for particular requirement, right? So we have particular requirement is there. So as per the particular requirement, we are going to write the test cases on the same and execute the test cases. That is for one requirement, right? So we have number of requirements. Suppose we have 5 रिक्वायरमेंट, हमारे पास अगर 5 रिक्वायरमेंट है, तो उन 5 रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें उस एक एक रिक्वायरमेंट के ऊपर टेस्टिंग एक्टिविटी में टेस्ट केसेस राइट करनी होगी और उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट? ऐसा ना, Yes, sir. Yes, sir. तो समझो यहाँ पे रिक्वायरमेंट 1 है। सो रिक्वायरमेंट 1 के लिए टेस्टिंग करनी पड़ेगी एज अ टेस्टर को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, राइट टेस्ट केसेस करने पड़ेंगे उस रिक्वायरमेंट के ऊपर जो अपने को रिक्वायरमेंट दी गई है क्लाइंट की तरफ से, उनके ऊपर टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे और उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हमें कुछ डिफेक्ट्स मिलेंगे, राइट? वी विल गेट सम डिफेक्ट, दिस विल बी सॉल्व। हम इसे फिर से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है? इन डिफेक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने का अगर वो डिफेक्ट्स क्लोज होते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है? रिप्रोड्यूस मतलब क्या, कि फिर से अगर वही एक्टिविटी या फिर वही किसी तरफ से वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, रिप्रोड्यूस मतलब क्या, फिर से दिख रहा है वो एरर फिक्स करने के बाद भी, तो उसे हम रीओपन करेंगे, ठीक है? रीओपन नहीं होता है तो वो क्लोज ही होगा, ठीक है, उससे ठीक है। तो ये है टेस्टिंग साइकिल। ऐसे हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट है, तो 5 रिक्वायरमेंट के लिए 5 डिफरेंट टेस्टर्स रहेंगे। कोई एक रिक्वायरमेंट काम करेगा तो कोई दूसरा, कोई तीसरे रिक्वायरमेंट में, कोई चौथा, कोई पांचवा, है कि नहीं? ऐसा ना। Yes, sir. सो इस रिक्वायरमेंट की वजह से हमें यहाँ पे जब से डिज़ाइन और कोडिंग टेस्टिंग एक्टिविटी हो रही है डेवलपमेंट की, उस टाइम पे हमें टेस्ट केस डिज़ाइन करनी है। टेस्ट मतलब डिज़ाइन फेस टेस्टिंग करनी है, मतलब डिज़ाइन करने हैं हमें टेस्ट केसेस, और उनको उस मैनर में रेडी होनी चाहिए जब तक उनका डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो जाए उस रिक्वायरमेंट का। जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, तो उसके बाद में इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या क्या होगा, उसकी यूनिट टेस्टिंग होगी, उसके बाद में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी, पीपीटी होगी, ठीक है? सॉरी, यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन होगी, और उसके बाद में हम लोग वो बिल्ड हमें डिप्लॉय की जाएगी हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट पे, जहाँ पे हम उसे टेस्टिंग करेंगे, उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे।
तो समझो 2 रिक्वायरमेंट आई है, एक रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है। तो उस रिक्वायरमेंट को या फिर उस रिक्वायरमेंट को हमने क्या करेंगे एग्जिस्टिंग मॉडल, जो भी कुछ एग्जिस्टिंग हमारी वेबसाइट है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ, ठीक है नहीं। वन न्यू रिक्वायरमेंट will gather info with एग्जिस्टिंग मॉडल, एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी जो थी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन बोल सकते हैं मॉडल बोलने का, ठीक है। वो नई रिक्वायरमेंट को दिया जाएगा हमें टेस्ट करने। तो हम लोग क्या करेंगे, नई रिक्वायरमेंट आई है तो सबसे पहले देखेंगे कि वो स्टेबल है या नहीं। टेस्टिंग करने के लिए हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे ना उसकी, कि मैं इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकता हूँ क्या, ठीक है नहीं, कितना स्टेबल है वो फीचर, ठीक है। अगर स्टेबल नहीं होगा तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैनिटी टेस्टिंग करते हैं, जो कि हमारा अगला पॉइंट है सैनिटी टेस्टिंग, ठीक है। सैनिटी, तो अगर हमें समझा कि वो स्टेबल है तो हमने सैनिटी टेस्टिंग की, स्टेबल रहेगा फिर हम जाके टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन किया, हमें कोई डिफेक्ट्स मिले तो फिर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू हो जाएंगे। इसके बाद में हम लोगों के पास सिस्टम रहेगा, पूरा का पूरा सिस्टम है। अभी ये मैंने चेक किया, सिस्टम एंड फंक्शनलिटी टेस्टिंग करेंगे, मतलब क्या फिर पूरे एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी चेक करेंगे कि क्या हो रहा है एप्लीकेशन में, ठीक है। अभी हमें ये पता चला कि ये जो नई रिक्वायरमेंट है ये टेस्ट करते करते हमारा जो एग्जिस्टिंग मॉडल रहेगा, ठीक है, जैसे कि अमेजोन पे का ये लेते हैं, ठीक है। अमेजोन पे में हमारे पास एक नया रिचार्ज का सेक्शन आया है, ठीक है। दिस इज अ न्यू फीचर जो इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट। और एग्जिस्टिंग फीचर्स हमारे कौन कौन से है, एग्जिस्टिंग फीचर कौन कौन से है बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी या डीटीएच रिचार्ज वाले एग्जिस्टिंग फीचर है, ठीक है। अभी इनकी डेवलपमेंट, इनकी टेस्टिंग हो गई है, ठीक है। क्या हुआ है, इनकी डेवलपमेंट और इनकी टेस्टिंग हो गई है, हमने एक नया मॉडल ऐड किया है। तो इस मॉडल को ऐड करने के बाद अगर इन मॉडल पे काम ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब इनकी फंक्शनलिटी वर्क नहीं हो रही, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग, जो मैंने कल लास्ट में टॉपिक क्लियर किया था। इसमें क्या होता है, वी विल चेक impact on other features, other requirement और features बोलेंगे इसी तरह, ठीक है। we will check impact on other feature as we have added new requirement, we have integrated बोल सकते हैं, added नहीं, ठीक है, integrated new feature और requirement। तो इसका क्या है समझो, अभी मैंने DTH मोबाइल रिचार्ज ऐड किया था, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज वाला फीचर ऐड किया है मैंने, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी वर्क काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा इसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों इस तरह का एरर दे रहा है। तो उसे बोला जाता है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग, जो एकदम नीचे दिया गया है, ठीक है। सिस्टम एंड फंक्शनलिटी टेस्टिंग हो गया, उसके बाद में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट को डेमो देना पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी रिक्वायरमेंट गैदर की थी उसके ऊपर क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल आना जरूरी है कि यस वॉट एवर वी हैव इम्प्लीमेंटेड and it is working absolutely fine and we don't have any feedback item for the same, okay। जो कुछ भी हमने डेवलप किया है वो हमें वही चाहिए था और हमें इसमें कुछ फीडबैक नहीं है, तो यही जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे या फिर रियल एनवायरनमेंट पे हम लोग इसे अपलोड करेंगे इस डेट पे,
और टेस्ट डॉक्यूमेंट मतलब क्या है कि जितना भी आपने टेस्टिंग के लिए कितने भी टेस्ट केस रहे होंगे, कितने भी डिफेक्ट्स आपने असाइन किए होंगे, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, DRE देखा है, DRE इक्वल्स टू क्या था, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या था, कल जो हमने देखा था। DRE किस तरह से ये होता है, फॉर्मूला क्या था उसका? Sir, defects found by tester divided by defects found by tester added to defects found by user. हाँ, तो उसका फॉर्मूला क्या था, A डिवाइडेड बाई A प्लस A B था, plus राइट? B. Yes. उसका यूज क्या है? We can derive the efficiency of testing. सो व्हेन वी कैन से इट्स अ गुड टेस्टिंग, कोई दूसरा बता देगा, एक ही मत बताओ। 1 to, अगर उसका जो it is between 1 to 0.8, then it is a good testing. ठीक है, एवरेज टेस्टिंग या बैड टेस्टिंग का बोला जाएगा? अगर वो 0.6 है तो एवरेज बोला जाएगा, और उसके नीचे रहेगा तो बैड टेस्टिंग बोला जाएगा। सो जब क्लाइंट को डेमो दे रहे हैं, तो डेमो देते वक्त, क्लाइंट को डेमो देते वक्त हमारे क्या एरर मिल रहे हैं, तो दैट विल हैव बैड इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या है कि हमने अच्छे से टेस्टिंग नहीं किया होगा, राइट? है कि नहीं? एज अ टेस्टर रहेगा, कोई भी टेस्टर रहेगा, अगर हम लोग डेमो दे रहे हैं क्लाइंट को, और डेमो देते वक्त क्या हुआ है, डेमो देते वक्त एरर आ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन। जैसे कि एक बार हुआ था कि टेस्ला ने एक कार निकाली थी, ठीक है, तो उसके डेमो के लिए वो क्या कर रहे थे कि उसका विंडशील्ड जो होता है, ठीक है, उसका जो ग्लास होता है, कांच होता है डोर का, उसके ऊपर उन्होंने कुछ मेटल फेंक के मारा था, तो वो मेटल ब्रेक हुआ था। So that will cause some error to means defect. This will cause some problem to company, right? क्योंकि हम लोग डेमो दे मेटल रहे ब्रेक हैं। हुआ था. हाँ, मेटल ब्रेक हुआ था विंडो. नहीं नहीं, मेटल नहीं था, वो ग्लास था, ग्लास विंडो का। Okay. तो उसको ऐसा मेटल फेंक के मारा था उसको, मतलब मेटल का बॉल था वो। तो उनको दिखाना था कि कितना मतलब वो कांच जो है वो कितना स्ट्रांग है। तो ये हुआ था कि वैसे वैसे उन्होंने फेंका, तो फिर वो टूट गया। मतलब ऐसा दिखाना चाहता था कि वो बहुत बुलेट प्रूफ ग्लास है, लेकिन वो टूट गया। तो ऐसा फिर इम्पैक्ट होता है क्लाइंट को डेमो को देते वक्त। तो इसका क्या होता है मतलब कि उनका मतलब एप्लीकेशन अच्छा था, उनका विंडशील्ड भी अच्छा था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कुछ दूसरे इससे मतलब उन्होंने इसके ऊपर वार किया था, मतलब डोर के ऊपर, ग्लास के ऊपर, वो डोर, कार के डोर के ग्लास के ऊपर उन्होंने फेंक के मारा था। तो वो मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, इसलिए वो फेल हुआ था। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब भी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, क्लाइंट के साथ डेमो होगा, तो उस टाइम पे मेक श्योर करना कि डिफेक्ट्स नहीं दिख रहे आपके। ठीक है, इसका मतलब ऐसा होता है कि आपने टेस्टिंग ठीक से की नहीं है। अगर फीडबैक आइटम्स आ रहे हैं क्लाइंट की तरफ से, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है बनाने के लिए, तो दैट इज ओके। ओके, बट ये नहीं आना चाहिए कुछ। ठीक है, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी हो गया, रिक्वेस्ट फॉर चेंज हो गया। जैसे हम मतलब फीडबैक मतलब क्या है कि फीडबैक दे रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर चेंज मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी। जो भी उनको छोटा सा चेंज चाहिए रहेगा, तो वो हम SRS डॉक्यूमेंट में रेड साइन में ये कर देंगे कि ये कुछ चेंजेस नए आया है क्लाइंट की तरफ से। सो रिग्रेशन टेस्टिंग ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू। एंड पोस्टमार्टम टेस्टिंग मतलब क्या है कि कोई आपको प्रॉब्लम मिल रहा है, तो उसके एकदम रूट प्रॉब्लम क्या है, कॉज फाइंड करना और उसको सॉल्व करना, दैट इज पोस्टमार्टम टेस्टिंग। द रियल वर्ल्ड में भी वही होता है हमारे साथ। ओके, सो वी मॉडल इन एन SDLC, मैं आपको अब सिर्फ रीड करके दिखाऊंगा। अभी जो कुछ में है मैंने सब क्लियर किया है। ओके, the V model is an SDLC model where execution of process happen in a sequential manner in V shape. Okay, it is also known as verification and validation. यही बताया था कि वी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया है कि वी मॉडल क्यों कहा जाता है। द वी मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड इज बेस्ड ऑन द एसोसिएशन ऑफ अ टेस्टिंग फेज फॉर ईच करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट। सेम इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है यहाँ पे, सेम मैनर में टेस्टिंग का कुछ तो एक्टिविटी हो रहा है। Every single phase in development cycle, there is a directly associated testing phase. This is highly disciplined model and next phase starts only after completion of previous phase. Yes,
कि वाटरफॉल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सिक्वेंशियली काम हो रहा है, मतलब एक के साथ एक काम हो रहा है, जहाँ पे डेवलपमेंट भी काम कर रही है, टेस्टिंग भी काम कर रही है, और एक फेज के अंदर में जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम लोग आगे नहीं जा सकते। ठीक है। Under the V model, the corresponding testing phase of the development phase is planned in parallel. So there are verification phases on one side, that is V, and validation phases on other side, that is V model. The coding phase join two sides of V model. So जहाँ पे कोडिंग होती है ना, उसके बाद में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। तो इसके बाद में टेस्टिंग एक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि इनका ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी यहाँ पे खत्म होती है। Okay. So requirement have to be very clear before the project start, because it is usually expensive to go back and make changes. हाँ, चेंजेस आएंगे तो हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए चार्ज करने वाले कस्टमर। ठीक है। दिस मॉडल इज यूज इन मेडिकल डेवलपमेंट फील्ड एज इट इज स्ट्रिक्टली एज अ डिसिप्लिन मॉडल। तो इस मॉडल पे क्यों रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते अगर चार्ज करना है? तो हॉस्पिटल डोमेन जो होते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर डोमेन जो होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि आप जब हॉस्पिटल की वेबसाइट देखोगे तो उसमें ज़्यादातर चेंजेस रहेगा। नो सर। कभी कभी आएंगे, मतलब रियल चेंजेस रहेंगे उसमें, है ना। कभी कभी आएंगे, ऐसे डायनामिक चेंजेस नहीं रहेंगे। कभी कभी मतलब थोड़े से चेंजेस करने हैं, है ना। उनके रिक्वायरमेंट पहले से फिक्स होते हैं कि उन्हें किस तरह की वेबसाइट चाहिए। ओके, सो दैट्स वाई कि ज़्यादातर से हेल्थ केयर डोमेन में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इट इज़ हाईली डेवलप मॉडल, मतलब डिसिप्लिन मॉडल है, इसमें डिसिप्लिन डोमेन है, और इसको क्या है, रिक्वायरमेंट पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट चेंज भी होती है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग उसे क्या करेंगे, सॉल्व करके देंगे। प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो है ये सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी इज नॉट डायनामिक एंड वेल अंडरस्टूड बाय द रिक्वायरमेंट आर वेल डिफाइंड, क्लियरली डॉक्यूमेंटेड एंड फिक्स। यही बोलना चाहता है कि रिक्वायरमेंट क्लियर होने चाहिए। तो मेडिकल डोमेन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर होते हैं, और देयर आर रेयर चांसेस दैट रिक्वायरमेंट विल गेट चेंज। अगर चेंज भी हो रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्लाइंट को चार्ज करेंगे, जो भी हमें कुछ इम्पैक्ट पड़ना पड़ रहा है, हमें जो भी काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है उसके लिए। और ये जो है थोड़ा एप्लीकेशन स्टेबल है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स नहीं है इसमें। ठीक है। टेक्नोलॉजी इज नॉट डायनामिक एंड वेल अंडरस्टूड बाय द प्रोजेक्ट टीम। मतलब डायनामिक मतलब क्या है कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो हम लोग को मेक श्योर करना है कि जस्ट एप्लीकेशन डिलीवर करना है। मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि नए एप्लीकेशन के ऊपर या फिर नई टेक्नोलॉजी पर काम नहीं होता है, उन्हें सिर्फ उनका काम चाहिए, एप्लीकेशन डेवलप करके चाहिए। वेबसाइट रहेगा तो वेबसाइट एप्लीकेशन बना के चाहिए, वो दैट्स इट। नई टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिंपल से जो रिक्वायरमेंट रहेंगे उसके ऊपर काम करें। देयर आर नो एम्बिगुअस और अनडिफाइंड रिक्वायरमेंट। यही है कि रिक्वायरमेंट चेंज नहीं है बोल रहा है। द प्रोजेक्ट इज शॉर्ट, पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। तो मुझे बताइए, अगर आपको कुछ वेबसाइट बनानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी मेडिकल डोमेन की वेबसाइट, जैसे हॉस्पिटल, तो उसे कितना टाइम लगेगा आपको बनाने को? एक साल में बन जाएगी। यस सर। और उसमें चेंजेस कुछ आएंगे क्या? जैसे कि देखो चाह के वेबसाइट, ये जो है पुणे का हॉस्पिटल है, उस पुणे की वेबसाइट, पुणे का हॉस्पिटल की वेबसाइट है। ठीक है। सो इतना कुछ मतलब एक्स्ट्रा फील दिख रहा है कि कुछ आपको नया नया, एक नॉर्मल वेबसाइट दिख रही है, राइट। यस सर। सो इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी की, बहुत सारे हॉस्पिटल की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन रहेगी इस वेबसाइट पे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी यहाँ पे।
ज़्यादा कुछ डायनामिक चेंजेस नहीं है। डायनामिक मतलब क्या कि हमें अभी के अभी चेंजेस चाहिए, जैसे कि ई कॉमर्स डोमेन में हो सकता है, उतने सपोर्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो इस लाइक का ठीक मॉडल रहता है जहाँ रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वी मॉडल। तो किसी कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट्स रहेंगे तो। सर हम्म आप बता सकते हैं फॉर विद एग्जांपल्स के कौन से मॉडल के लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ये जो काम होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था ना, तो कौन डिसाइड करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करना है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ओके। हमारे ऊपर नहीं रहता। एज ए टेस्टर्स जो जूनियर लेवल होते हैं, सीनियर लेवल, डिक्लेयर के ऊपर टेक्निकल लीड्स के अंडर भी नहीं होता है। ये पूरा का पूरा डिसीजन होता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का। ये सब ओके। इनके हाथ में होता है कि कौन सा मॉडल रिक्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट यहाँ पे गैदर होते हैं, तो इसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि क्लाइंट को कब प्रोडक्ट चाहिए, क्लाइंट को कब एप्लीकेशन डेवलप करके चाहिए। अभी यहाँ पे देखो 3 महीने में रिक्वायरमेंट चाहिए उसे, तो हम लोग बेसिकली इस रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। ओके, अभी हमारे पास वाटरफॉल। हाँ, कौन सा भी जा सकते हैं इसमें से। ठीक है, वी मॉडल, फिश मॉडल, सबका 3 3 मंथ से। अभी मुझे वीक्स में चाहिए, मुझे 2 वीक में चाहिए या फिर 3 वीक में रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट टेस्टिंग करके डेवलप करके स्टेबल वर्जन चाहिए मुझे रियल वेबसाइट पे। तो तब हम अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न विथ अजाइल मेथोडोलॉजी कि अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है। सो इसका हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा तो 80% कंपनीज में अजाइल मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये यस आपको सर। पता चलेगा, मैं बताता हूँ आपको अजाइल क्या होता है। ओके, तो आज तक हमने इतने सारे मॉडल देखे, उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अजाइल मेथोडोलॉजी। तो आज मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आज मैं सिर्फ आपको व्हाट इज अजाइल मेथोडोलॉजी बताऊँगा। ठीक है, अजाइल का आर्किटेक्चर पहले बताता हूँ, और उसके बाद में फिर आपको अजाइल क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्लियर है? कैन यू स्टार्ट विद दी अजाइल मेथोडोलॉजी नाउ? तो यहाँ पे जो है ना, प्रोजेक्ट जो होता है, कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा अजाइल का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट्स अ मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी, इट्स नॉट अ प्लान। अजाइल अजाइल मेथोडोलॉजी जो होती है, इट्स अ मॉड्यूल ड्रिवन। प्लान ड्रिवन, सो इसमें प्लान तो किया जाता है, हर मॉडल में प्लान किया जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे एप्लीकेशन इस तरह से डेवलप करना है हमें, कि हमें वो जो एप्लीकेशन बनेगा उसके मॉडल के ऊपर ज़्यादा डेवलप करना है, हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ प्लान मेथोडोलॉजी, इट्स अ मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। तो हम लोग जो काम करेंगे उस मॉडल के ऊपर काम करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज सेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, हेंस इट इज कॉल्ड एज मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कोई भी एप्लीकेशन। सबसे पहले लॉगिन फंक्शनलिटी बनाएंगे, लॉगिन पेज बनाएंगे, साइन अप पेज बनाएंगे, उसके बाद में होम पेज बनाएंगे। ठीक है, अगर यूजर्स रहेंगे उस एक्सेस के लिए, ठीक है, ऐसा। यस सर। तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब मॉडल्स को ज़्यादा भाव दिया जाता है, मॉडल्स को ज़्यादा देखा जाता है इस मेथोडोलॉजी में। ठीक है, the agile is a term used to describe software development approach that employs continuous planning, learning, improvement, team collaboration, evolutionary development, and early delivery. It encourages flexible response to change. तो ये जो agile methodology है, इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो कि यहाँ पे कंटिन्यूस प्लानिंग होने वाली है।
मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इस अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता है, जो हम 3 मंथ्स के रिक्वायरमेंट में काम कर रहे थे ना, 3 मंथ्स, तो इसका सबसे एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो हम लोग काम करेंगे वो रहेगा वीक्स के अंदर, ठीक है। तो वो वीक्स हो सकते हैं 2 वीक्स। अभी कोई कोई कंपनी रहेगा जो काम कर रही होंगी अजाइल पे, जो आप भी आगे जाके काम करोगे तो वो वीक में काम करोगे, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट आएगी वो 2 वीक में आएगी या फिर 3 वीक्स में आएगी। तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल करना है। फुलफिल करना मतलब क्या है, मतलब उस रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको पूरा डेवलपमेंट, कोडिंग एंड टेस्टिंग करना है। कोडिंग एंड टेस्टिंग करना है, और कोडिंग और टेस्टिंग करने के बाद क्या होगा, आपका एप्लीकेशन जो बनेगा उसको आप क्या करोगे, क्लाइंट के साथ डेमो दोगे और वो एप्लीकेशन को रिलीज करोगे, ठीक है नहीं? यस ना? यस सर। तो 2 वीक में अगर या फिर 3 वीक में आपका जो काम है, समझो 2 वीक का काम है, ठीक है। सो 2 वीक में क्या हो रहा है, 2 वीक्स में आपका कोडिंग भी हो रहा है, आपका टेस्टिंग भी हो रहा है, और तीसरे वीक में आपका क्लाइंट का डेमो हो रहा है, और तीसरे वीक में एप्लीकेशन डेवलप करके रिलीज हो रहा है कौन से एनवायरनमेंट पे, लाइव एनवायरनमेंट। लाइव एनवायरनमेंट को हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन कितने दिन में बन रहा है, फीचर कितने भी दिन में डेवलपमेंट यूजर यूज कर सकता है, तीसरे वीक में, राइट। यस सर। तो 3 वीक में अगर प्रोजेक्ट बन रहा है, 3 वीक में अगर एप्लीकेशन को ये हो रहा है, तो आप वाटरफॉल यूज करोगे या अजाइल यूज करोगे? अजाइल सर। अजाइल यूज करेंगे। तो अजाइल में यूज करने के लिए अभी ये प्रोसेस एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो क्या है, लर्न इम्प्रूवमेंट। लर्निंग इम्प्रूवमेंट्स, टीम कोलैबोरेशन, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, टेस्टिंग होगा इसमें, अर्ली डिलीवरी, टेस्टिंग, अर्ली डिलीवरी, ठीक है। अब ये सब जो होने वाला है काम, ये सब एक ही स्प्रिंट में होने वाला है, ठीक है। अभी समझो आपको जो है एक स्प्रिंट में रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें 2 वीक का प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। फिर इसके ऊपर समझो हमने डेवलपमेंट करना है हमें, ठीक है। तो हमें कोई आता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट के लिए हमने काम तो किया है, लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, तो हमें हर बार कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट को हर बार नया कुछ ना कुछ नया देखना पड़ेगा। और हम लोग को भी है एज अ टेस्टर, हम लोग को कुछ ना कुछ नया टेस्ट करने मिलेगा। हमारा जो नॉलेज है, समझो आप अभी जो है मैनुअल टेस्टर ही काम करते हो, ठीक है। तो आपको ऑटोमेशन टेस्टर का भी नॉलेज दिया जाएगा, आप पढ़ाई कर सकते हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी थोड़ा बहुत कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है ऑटोमेशन टेस्टिंग करने में। आपको डेटाबेस टेस्टिंग करनी है तो डेटाबेस टेस्टिंग भी कर सकते हो। एपीआई की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है, जो अलग से इन्वायरमेंट्स आते हैं, अलग से एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ से डेटा आता है, ठीक है। जैसे कि गूगल पे का क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है नहीं। बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है पेमेंट करने की, खुद की इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं, नो राइट। सर। ये दूसरे बैंक की है,
तो ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम लोग APIs कॉल करते हैं, जहाँ पे हमें डेटा तो सिक्योर करना ही है, लेकिन हमें पेमेंट करने के लिए इन दोनों का इंटरेक्शन करना होगा, बैंक के साथ गूगल पे। तो गूगल पे क्या करेगा, बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कुछ अमाउंट के लिए, 100 रुपीज़ के लिए, तो वो डेटा शेयर किया जाएगा। आप UPI पिन डालोगे तो उस तरह से वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सो जो हमारे पास एप्लीकेशन है, तो उसको समझो UI टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। तो आपको UI टेस्टिंग अच्छे से आती है, सो यू विल आल्सो गेट चांस टू वर्क ऑन डेटाबेस टेस्टिंग, उसके बाद में API टेस्टिंग। तो आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन सीखने मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग ये सब कवर करेंगे कोर्स में आगे जाके, ठीक है। कंटिन्यूस प्लानिंग भी है, आपको कुछ नई टेक्नोलॉजीज, नई इंफॉर्मेशन एज अ डेवलपर, एज अ टेस्टर सीखने भी मिलेगी, आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा सर होगा। व्हाट इज API टेस्टिंग? API टेस्टिंग क्या होता है कि जब भी मैंने ऐसा होता है कि गूगल पे है और आपको ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। यस सर। तो ट्रांजेक्शन करना, बैंक का डेटा आपके पास है क्या? नो। नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वांट टू डिडक्ट दिस मनी फ्रॉम गूगल पे। तो गूगल पे एक दूसरा एप्लीकेशन है और बैंक एक दूसरा एप्लीकेशन। तो ये क्या करेंगे, गूगल पे रिक्वेस्ट करेगा आपका बैंक को, तो ये जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है, डेटा जो फेच कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो अलग से एप्लीकेशन से आ रही है, राइट। हम्म। तो वो सेव करना मतलब क्या होता है, APIs होता है। तो आगे जाके आप लोग देखोगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है API की, वो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एक तो होता है कि इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना, है कि नहीं। यस सर। API का लॉन्ग फॉर्म क्या है सर? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये ज़रूरत ओके, नहीं है, थैंक यू सर। आपकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ ना, इतना आपको सीखने मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। आपको चांस मिलेगा ये करने के अंदर। अभी डेटाबेस टेस्टिंग भी आगे आने वाला है, किस तरह से करेंगे, और API भी आने वाला है। तो उसको अभी ज़्यादा ये मत लो, उसके ऊपर लोड मत लो, ठीक है। तो हर कोई टेक्नोलॉजी रहेगी, उसके आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, आपका खुद का इम्प्रूवमेंट रहेगा, ठीक है। अभी डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट टीम है, टेस्टिंग टीम। तो डेवलपर एंड टेस्टर जो है एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपको जो है डेवलपर और टेस्टर के साथ एक बैठ के आप काम कर सकते हो। आपका कोलैबोरेशन, आपका जो बात करना है वो बहुत ज़्यादा होगा इस अजाइल में, क्योंकि आप पे कुछ डिफेक्ट्स है, आपने रेस किए हैं, तो आप डायरेक्टली कॉल करके, ठीक है। अभी वर्क फ्रॉम होम चालू है, हम लोग वर्चुअली काम कर रहे हैं, हम लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम में, राइट। तो आप एक कॉल दूर है, अगर डेवलपमेंट टीम से कुछ आपको डिस्कस करना है, कुछ रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको डिस्कस करना है, कुछ डिफेक्ट्स के ऊपर आपको डिस्कस करना है, या फिर आपको नॉर्मली कॉल करके कुछ जान के लेना है उनकी तरफ से, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन जो है, आप डेवलपर और टेस्टर को ज़्यादा हो जाएगा इस मॉडल में, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब क्या है कि डेवलपमेंट करना मतलब कोडिंग करना, उसके अंदर टेस्टिंग करना, और ये सब करके हम लोग एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। कितने टाइम में, 2 वीक्स में। राइट। सो इसके लिए अजाइल बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंपनीज जिनको भी फास्ट डेवलपमेंट चाहिए, क्लाइंट को अगर अर्ली डिलीवरी चाहिए, और यहाँ पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट भी है, आप चेंज कर सकते हो, और उसके लिए आपको चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, अजाइल इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस दैट एम्प्लॉय कंटिन्यूस प्लानिंग होगी, लर्निंग होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, आपका टीम के साथ कोलैबोरेशन होगा, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होगा, और अर्ली डिलीवरी होगी। और इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, वी आर अडेप्टिव टू चेंजेस। कुछ कस्टमर का, क्लाइंट का चेंज आता है, क्लाइंट का ही चेंज आता है, कस्टमर का नहीं, क्लाइंट के चेंजेस आते हैं, तो वो चेंज भी हम लोग लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। प्लान इज नॉट फिक्स्ड requirement, changes continuously happen, hence it is called as value driven methodology, not a plan driven methodology। मतलब यहाँ पे प्लान तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को क्या हो रहा है, चेंजेस हो सकते हैं, तो हम लोग वैल्यू किसे दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग प्लान Yes, sir. चेंज कर रहे हैं ना, है कि नहीं? तो इट्स नॉट अ Yes. प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी, इट्स अ वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी। बिकॉज जितने भी रिक्वायरमेंट चेंज होंगे तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और उस रिक्वायरमेंट पे जो काम करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहे क्लाइंट को, ठीक है? अगर हम लोग अच्छी सर्विस देंगे तो क्लाइंट क्या करेगा, और एक दो प्रोजेक्ट लेके आएगा, और एक दो प्रोजेक्ट लेके आएगा, या फिर अपने सर्विस को जो है एप्लीकेशन का मेंटेनेंस रहेगा, कुछ रहेगा, तो यही की एप्लीकेशन को हमारे पास ही देगा, कंपनी उसी कंपनी को देगा, है कि नहीं? अगर हमने आप उसको अच्छी सर्विस दी, है कि नहीं? आपके आपके साथ ही आएगा ना वो, अगले प्रोजेक्ट के लिए, आपके मेंटेनेंस के लिए, जो कुछ भी होगा। Correct. तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा करके वैल्यू बहुत दे रहे हैं उसके एप्लीकेशन को, ठीक है? यहाँ पे जो है SRS डॉक्यूमेंट नहीं होता, यहाँ पे यूजर स्टोरीज होती है, ठीक है? देयर इज नो SRS डॉक्यूमेंट इन अजाइल, इंस्टेड ऑफ दैट यूजर स्टोरीज आर देयर। सो SRS डॉक्यूमेंट में क्या होता था हमारे, तो यहाँ पे SRS डॉक्यूमेंट है ही नहीं, यहाँ पे है यूजर स्टोरीज। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आने वाली है इन टर्म्स ऑफ, वो आएगी यूजर स्टोरीज में। सो यूजर स्टोरीज में दो इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो ये दो इंफॉर्मेशन होती है, हर रिक्वायरमेंट के लिए रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा लॉगिन फंक्शनैलिटी का, डिस्क्रिप्टिव। User credentials, user ID, password. तो यहाँ पे यूज़र नेम होना चाहिए, है, पासवर्ड होना चाहिए। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड का करेक्ट क्रेडेंशियल होने चाहिए, राइट? इसका वैलिडेशन रहेगा, अगर करेक्ट पासवर्ड डालेगा तो यूज़र लॉगिन कर सकता है, अगर मोर देन 3 टाइम्स एंटर लॉन्ग पासवर्ड, एंटर रॉन्ग यूज़र नेम, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स बोलेंगे ज़्यादा, ठीक है? अकाउंट इज लॉक, सिस्टम अकाउंट इज लॉक फॉर 24 आवर्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है कि लॉगिन कर सकते हो, लेकिन लॉगिन अगर 3 से ज़्यादा बार रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, वो अकाउंट लॉक्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा 24 आवर्स के लिए, ठीक है? तो इसके अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या हो सकता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? If username and password is correct, then you'll get login. लॉगिन विथ करेक्ट क्रेडेंशियल, ठीक है? अगर रॉन्ग हो गए तो क्या होगा, एरर मैसेज, शुड बी डिस्प्लेड, लेकिन लॉगिन कर रहे हो तो करेक्ट क्रेडेंशियल होना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हो तो एरर मैसेज शो होना चाहिए। रिसेट पासवर्ड लिंक एक्टिवेट, मतलब वर्क होनी चाहिए ठीक से, है कि नहीं? यूजर शुड बी ऑन लॉगिन पेज एंड अगर आपने उसका साइन अप ही नहीं किया तो आप लॉगिन कर सकते हो क्या? नो सर। सो दैट इज अ वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस होगा यहाँ पे, वो क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है? अगर हम लोग साइन अप पेज पे जा रहे हो, अगर हम लॉगिन पेज पे ही नहीं है उस एप्लीकेशन और हम क्रेडेंशियल डाल रहे हैं, तो होगा क्या,
इन टर्म्स ऑफ देखो, मुझे ऑर्डर करना है amazon.in, लेकिन मैं अमेजन जा रहा हूँ amazon.com। यहाँ पे मैं जाके साइन इन कर रहा हूँ, तो मेरा साइन इन होगा नो डाउट, लेकिन मेरा साइन इन कौन से वेबसाइट पे होगा? .com पे होगा, .in पे मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है नहीं? यस और नो? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। लॉगिन मुझे amazon.in पे करना है, तो मैं amazon.com पे जाऊँगा। तो .com कौन से कंपनी, मतलब कौन से रीजन के लिए है, कौन से कंट्री के लिए है? यूएसए। यूएसए के लिए, राइट? तो मैं अगर वहाँ पे जाके करूँगा तो मेरा लॉगिन जो होगा यूएसए के लिए होगा, तो मैं .in के प्रोजेक्ट वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ क्या? अगर मुझे इंडिया के लिए प्रोडक्ट खरीदने हैं तो मुझे इंडिया में ही प्लेस करना पड़ेगा .in पे, है कि नहीं? यस सर। अगर मैं यूएसए में जा रहा हूँ तो यूएस में जाने के बाद मुझे कहाँ से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? मेरे लिए खुद में यूएसए में हो तो .com पे करना पड़ेगा ऑर्डर, राइट? यस सर। सो यहाँ पे यूजर स्टोरी में ऐसा होता है, ये सब इंफॉर्मेशन यूजर स्टोरी में दी जाती है। तो यहाँ पे SRS डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे हर पॉइंट पे हम लोग जो है कस्टमर का फीडबैक लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे जो होता है ना, काम जो होता है अजाइल में, इन अजाइल प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू फेजेस, तो उसके 4 फेजेस होते हैं। फेज 1 मतलब क्या होता है, 1 ईयर होता है ना, सो 1 ईयर को हम लोग 4 इसमें डिवाइड करते हैं। 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, ठीक है? तो इसमें 4 मंथ्स है, तो अगर रिक्वायरमेंट जो होती है वो 1st to 3rd मंथ में लॉक होती है, मतलब इसे बोला जाता है 1 फेज, ठीक है? 1 to 3 ये 3 जो मंथ्स है इन्हें बोला जाता है एक फेज, 1 फेज। तो 3 to 6 मंथ रहेंगे। इसे हम कौन सा फेज बोलेंगे? सेकेंड फेज। सेकंड पेज। ऐसे हमारे 4 फेजेस होते हैं, 3 to 9, 9 to 12 मंथ्स। सो रिक्वायरमेंट जो आती है वो फेजेस में आती है। थर्ड फेज, ठीक है? तो जो कुछ भी रिक्वायरमेंट आने वाली है, अभी हमारे कितने फेजेस कंप्लीट हुए हैं? 2, ठीक है नहीं? अभी कौन सा मंथ चालू है? 6 to 9 चालू है, है कि नहीं? तो 3 मंथ्स के रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं 3 मंथ्स के रिक्वायरमेंट लॉक हो चुके हैं, और इस 3 मंथ्स के रिक्वायरमेंट को हमें डिलीवर करना है, क्लाइंट को डिलीवर करना है। वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके डिलीवर करना है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे। हमारे लिए कितने रिक्वायरमेंट्स है, कितने मंथ्स है? आगे वाले 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ्स के रिक्वायरमेंट हमें पता है कि हमें क्या क्या करना है, तो हम लोग उसे डिवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वीक्स में काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट? 2 वीक्स में हम लोग किसी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो समझो यहाँ पे 20 रिक्वायरमेंट्स है, उन 20 रिक्वायरमेंट को हमें डिलीवर करना है इन 3 मंथ्स में। तो हम पहले 2 वीक में कितने रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे? 3 या 4 जितने भी हो सकते हैं, ओके? इन 4 रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, इनको क्लाइंट को डेमो देंगे, रिलीज करेंगे। कहाँ? प्रोडक्शन पे रिलीज करेंगे,
राइट। ये सब कितने टाइम में हो रहा है? 2 weeks. 2 वीक्स में हो रहा है। मतलब तीसरे वीक में ये जो रिक्वायरमेंट है ये क्लाइंट को रिलीज करके उसके एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, लाइव एनवायरमेंट पे, लाइव एनवायरमेंट मतलब प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, थर्ड वीक शुरू हो गया, क्या हो गया थर्ड वीक में? क्या होगा? वही फिर 2 वीक का प्लानिंग, उसमें से कितने रिक्वायरमेंट रहेंगे? इसमें से समझो 5 रिक्वायरमेंट या फिर 3 रिक्वायरमेंट या 5 समझो। ठीक है, अभी ये जो है छोटे छोटे रिक्वायरमेंट है जिनका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके लिए 1 मंथ के अंदर हमने 9 रिक्वायरमेंट कंप्लीट किए। ठीक है, तो सेकेंड वीक मतलब जब अभी आप जैसे देख रहे हो, तो आप वीक में देख रहे हो ना, है ना? तो 1 मंथ में बोल सकते हैं कि इतने रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लीट करके प्रोडक्शन डाल दिए। ठीक है नहीं? Yes, sir. सो इसे बोला जाता है डेवलपमेंट, हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये डेवलप करने के लिए इसका अप्रोच किस तरह से होगा, मतलब इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, हम लोग किस तरह से एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। अभी मैंने जो अभी आपको बताया है ये है रिक्वायरमेंट्स 2 वीक में होने वाली है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट किस तरह से होगी उसके लिए एक आर्किटेक्चर दिया गया है, आर्किटेक्चर ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी। तो ये हम लोग कल देखते हैं। आज के लिए मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो मंडे पे आएंगे तो आर्किटेक्चर देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो आप मेक श्योर करो कि आप एक भी लेक्चर इसका मिस मत करो। ठीक है? अभी के लिए सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बहुत सारे टाइप्स है अजाइल के। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप के ये है और हम किस मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं। देखो, टाइप्स एंड फ्लेवर्स ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, सब मंडे को आएंगे तो इसके एडवांटेजेस देखेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, टाइप्स ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी देखेंगे, इसमें से हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं और उसके बाद में अजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कम टाइम है तो एडवांटेजेस हम लोग कर लेंगे, मतलब मंडे को ही लेंगे, आज तो सैटरडे।